friends, now I'm come back with the new video that is of determiners. Determiners is a word that introduces a noun. It means which determines a noun. It always comes before a noun, not after, and it also comes before any other adjectives used to describe the noun. Means noun को describe करने के लिए जो adjectives use होते हैं उससे पहले जो word लगता है that is called determiner. Determiners are required before a singular noun but are optional when it comes to introducing plural nouns. कि जब plural nouns को हम introduce करते हैं तो वहाँ पर ये optional होते हैं but ये required होते हैं singular noun के लिए. Now I'm going to tell you about the types of determiners. First one is articles, second one demonstrative, third one possessive, fourth one quantifiers, next one is numbers, sixth one distributive, and seventh one interrogatives. First we'll study about articles. Articles are the words that define a noun as specific or unspecific. Articles are of two types. First one is definite, second one is indefinite. Definite means which we are sure about, like the के लिए हम sure हैं कि वहाँ the लगेगा, that is for specific things. And for example, if we have seen anything second time, then we use the. And if I talk about indefinite, then a or an, and it is used for single thing. And when we use anything for first time, जब हम पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं, for example, I saw a beggar on the road. Then second time के लिए मैंने कहा the beggar was wearing torn clothes. तो second time जब मैंने mention किया तो then we use the. Then usually the people are confused about कि is it the or the. तो in English we have 26 alphabets in which 5 are vowels. तो द के बाद जब वाउल आता है देन इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज दी एंड द प्लस कॉन्सोनेंट, रेस्ट जो 21 वर्ड्स हैं वाउल्स को छोड़ के, देन इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज द. इट मीन्स डिटर्मिनर प्लस नाउन और आर्टिकल प्लस नाउन. इट मीन्स द, अ, एन प्लस आगे कोई भी नाउन आएगा. फॉर एग्जाम्पल यूज़ द व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक. किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करें. द अम्ब्रेला नेक्स्ट टू द डोर इज़ नॉट माइन. कि जो अम्ब्रेला डोर के पास है वो मेरा नहीं है. देन यूज़ द टू रेफर टू समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड. सेकेंड रेफरेंस के लिए जब ऑलरेडी वो मैंशन हो चुका है. अ माउस एंड एन एलिफेंट लिव टुगेदर. अगेन मैं उसी माउस के लिए बात करना चाहूँगी तो मैं वहाँ अ नहीं लगा के द लगाऊंगी. द माउस लव्ड द एलिफेंट्स बिग ट्रंक. use the when both the speaker and the listener know what is being talked about. कि किसके बारे में बात हो रही है दोनों को पता हो, लिसनर और स्पीकर को. इवन इट हैज़ नॉट बीन मैंशनड बिफोर. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ अ बाथरूम एंड आंसर इज इट इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर. हियर द इज यूज बिफोर बाथरूम एंड फर्स्ट. देन indefinite articles a, an. Use the article a or an to indicate any non-specified member of a group. जो non-specified और single है. I think an animal is in the garage. Next, use the article a or an to indicate one in number. एक है जो number में. I own a cat and 2 dogs. एक cat की बात हो रही है, that's why a is used here. Then a और an का जो difference है, the main difference is a before a consonant sound and n before a vowel sound. एंड इसमें एक मेन रूल है कि यू में यू की साउंड होने पर एन नहीं लगता. फॉर एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी, यू में अ की साउंड होगी तो एन लगेगा. फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला. देन अ कैट, एन ए की साउंड है. एप्पल, एन एम बी ए की साउंड है. नो डाउट द वर्ड इज एम बट द साउंड इज ऑफ ए, एम बी ए. देन ऑनेस्ट, एच इज साइलेंट हियर. लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज. Dash book you mention is out of print. The book you mention is out of print. Then I like the fellow. उस particular fellow की बात कर रही हूँ मैं तो the is used here. Then demonstrative. Demonstrative means
विच आर यूज टू इंडिकेट द पोजिशन और लोकेशन ऑफ अ नाउन। जब हम डेमो देते हैं किसी चीज़ का या जो चीज़ हमारे सामने है, जो स्पीकर के नियर है सिंगुलर थिंग, उसके लिए दिस, एंड जो सिंगुलर नाउन स्पीकर से दूर है दैट, जो प्लूरल थिंग्स स्पीकर के पास है दैट इज़ दीज, एंड प्लूरल थिंग्स जो स्पीकर से दूर हैं दोज, दिस दैट दीज दोज। यानी जो स्पीकर के पास एक चीज़ है उसके लिए दिस और ज़्यादा चीज़ें हैं तो दीज, और जो सिंगल चीज़ स्पीकर से दूर है दैट और ज़्यादा चीज़ें हैं तो दोज। लेट्स सी द एग्जाम्पल। दिस बुक इज़ माइन, इट मीन्स ये बुक मेरे पास है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस। दैट रेस्टोरेंट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो मेरे से दूर है तो दैट इज़ यूज हियर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स विद मी, बहुत सारी हैं तो मैं कहूँगी दीज बुक्स आर माइन। नेक्स्ट, पोजेसिव। पोजेसिव होता है विच इज़ यूज टू शो द पोजेशन ऑफ द थिंग। पोजेशन मीन्स जो किसी का हक होता है किसी पर, किसी चीज़ पर। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर, योर ब्रदर, हिज आंट, हर बैग। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। My father is a doctor. Her mother went to the market. Their books are collected from the library. Next, I'm talking about quantifiers. Quantifiers means which indicates quantity. Quantity means matra, how many or how much. Examples are any, many, much, some, a few, a lot of, lots of, little, enough, etc. Some are used with countable nouns and some are used with uncountable nouns, while others can be used with either of them. कुछ ऐसे हैं जो काउंटेबल के साथ ही यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल के साथ, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ ही यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल्स अब इसमें ये बताया है कि नेक्स्ट काउंटेबल नाउन्स लाइक पेन, बुक, टेबल, जिसको हम गिन सकते हैं चाहे वो सिंगल है या वो प्लूरल है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल, राइस है, शुगर है, सॉल्ट है, इसको हम क्वांटिटी में लेते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते। देन वी हैव काउंटेबल नाउन्स में हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी, लाइक मैनी बुक्स, सेवरल टेबल्स, अ नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ। अनकाउंटेबल में है जिसे हम गिन नहीं सकते, राइस, शुगर, सॉल्ट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ लिटिल शुगर, a large amount of salt is used for next है हमारे पास जो दोनों के लिए यूज़ होते हैं, उसमें है some, any, enough, a lot of और lots of. Like, do you have any problem? This food is enough for me. These are the examples. Next, let's move to numbers. These determine the exact quantity of the nouns they precede and also determine the order and position of something. कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल में हमारे पास है 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनल्स होते हैं जो हमारे पोजीशंस वाले नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कार्डिनल नंबर्स, शी बॉट 2 पेन्स, माई 2 फ्रेंड्स आर सिमरन एंड मैरी। ऑर्डिनल नंबर्स, शी गॉट फर्स्ट प्राइज, एज आई टोल्ड यू कि पोजीशन के लिए यूज़ होता है। आई परचेज सेकेंड बुक। तो यूज़ ऑफ बोथ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स नॉर्मली कम बिफोर कार्डिनल्स। जब हम दोनों को इकट्ठा यूज़ करते हैं तो ऑर्डिनल्स जो हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो कार्डिनल से पहले आते हैं। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट 3 प्राइजेज वेंट टू द सेम फैमिली। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो एक ऑर्डिनल नंबर है और 3 जो है वो एक कार्डिनल नंबर है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। अगर हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और उसमें हम यूज़ करते हैं ईच और एवरी, तो ईच और एवरी है हमारा इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जब हम एक मेंबर के। बोथ है व्हेन वी टॉक अबाउट 2 पर्सन्स, दो की। आइदर और नाइदर की, आइदर या तो और नाइदर ना तो। हाफ है डिवाइडेड ग्रुप, एंड ऑल है टू टॉक अबाउट द होल ग्रुप। ईच और एवरी मीन्स प्रत्येक। ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ गिफ्ट, एवरी चाइल्ड वॉज गिवन अ गिफ्ट, एंड ऑलवेज वी यूज सिंगुलर वर्ब विद ईच और एवरी। नेक्स्ट है बोथ बॉयज़ आर रेडी टू प्ले द क्रिकेट। जब हम दोनों की बात कर रहे हैं तो बोथ इज़ यूज्ड। आइदर बॉय इज़ रेडी टू प्ले द क्रिकेट, कि दोनों में से कोई भी ऐसा है जो क्रिकेट को प्ले करने के लिए रेडी है। नाइदर बॉय इज़ रेडी टू प्ले द क्रिकेट, कि कोई भी खेलने के लिए रेडी नहीं है।
जब हम नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो हम नो का एन लगा देते हैं आइदर से पहले, नाइदर. यू कैन हैव नाइदर कुकीज़ नो कैंडीज. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मीन्स विच आस्क क्वेश्चन. विच सैंडविच वुड यू लाइक? It helps specify which one out of a range of sandwiches is being referred to. It means which asks question. Which sandwich? What is your name? What food do you like? Which restaurant did you go to? Whose books are these? These are interrogative determiners. Now this is a practice exercise and I'll give the answers of these practice exercises in the description box. So let's switch to the end of the topic and have a good day.